Hello class fifth, how are you all students? Hope you all are doing amazing and also you all are revising all your previous chapter from your EVS book. In today's class, we are going to study chapter number 5 and the name of the chapter is Air and Water. So in this chapter, we are going to discuss about air and water. What are the learning points from the chapter? आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स के बारे में, composition of air, water and its impurities and purification of water. Now let's begin. Air and water क्या है बच्चों? Air and water, they both are the natural resources. Air and water both are essential for us. Life on earth is possible due to presence of air and water. Air क्या है? Air is an invisible mixture of gases. Air बच्चों present है हर जगह हमारे चारों तरफ. हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे महसूस कर सकते हैं. एयर हेल्प करती है हमारी इन वेरियस वेज एंड वी नीड एयर टू ब्रीथ, टू फिल इन द बलून, टू फ्लाई पैराशूट. ठीक है बच्चों, एयर को क्या आप देख सकते हो? नहीं. हम एयर को छू सकते हैं? नहीं. बट हम एयर को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा वायुमंडल. एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ये एक लेयर है गैसेस की जिसको बच्चों हम एयर बोलते हैं. एंड द प्लैनेट क्या है? प्लैनेट थिक लेयर से सराउंडेड है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर मिक्सचर है गैसेस का, जैसे कि बच्चों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है एंड मैनी मोर अदर गैसेस. एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करती है बच्चों लाइफ ऑफ द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग ultraviolet oblong radiations, warming the sun surface through heat retentions. एंड जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ के लिए फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट यूटिलाइज करती है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू प्रिपेयर देयर फूड, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. एंड द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स. कौन कौन सी लेयर्स है बच्चों? हियर वी हैव ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. Now let us discuss one by one. Now we have layers of atmosphere. Number one, troposphere. ये क्या है? This is the layer of the atmosphere closest to Earth's surface, extending up to about 10 to 15 kilometer above the Earth surface. ये Earth surface से पहली layer होती है बच्चों. Here you can see इस layer में aeroplane जो है वो उड़ रही है. The troposphere is wider at equator than the pole. Then we have stratosphere बच्चों. ये layers किसके बाद है? This layer lies directly above the atmosphere and it is about 35 kilometer deep and it extends from about 15 to 15 kilometer. And the upper part of the stratosphere, उसमें बच्चों ओजोन लेयर है and the ozone layer is like a huge shield जो ब्लॉक करती है बच्चों सन की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने के लिए. Mesosphere directly above the stratosphere, extending 50 to 80 kilometer above the Earth's surface, and this layer prevents what? Meteoroids, which are small rocks moving in space, and most of these meteoroids burn up in this layer before they can reach the surface of the Earth. Next we have thermosphere. The thermosphere ये extend करती है 80 kilometer above the Earth's surface to outer surface, and the temperature is not and may be high as thousands of degree as the few molecules that are present in thermos and here receive extraordinary large amount of energy. Then we have exosphere. ये क्या है? ये outermost layer of the atmosphere और ये contain करता है बच्चों very little air. कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है बच्चों? एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. तो मेन गैसेस कौन कौन सी है बच्चों? नाइट्रोजन है. द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 78%. लिविंग बींग्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, इट इज यूज बाय प्लांट. ये प्लांट द्वारा बच्चों यूज होती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सोइल. 21% बच्चों ऑक्सीजन है जो हम inhale करते हैं and the presence of oxygen is 21% in plants and animals need it for respiration and it also helps in combustion. यानी कि बच्चों ऑक्सीजन नहीं रहता तो बर्निंग भी असंभव थी. Now other gases, argon, carbon dioxide, hydrogen, methane and water vapor. Okay, so एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. कौन कौन सी गैसेस है हमने पढ़ा बच्चों? नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है और ये डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं, ये प्लांट्स द्वारा यूटिलाइज होती है. प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट्स. ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कंप्राइज करता है ऑलमोस्ट 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर्स. ऑक्सीजन बच्चों इट इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड इट आल्सो नीड फॉर बर्निंग. हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के बिना बच्चों कंबशन नहीं हो सकता, बर्निंग नहीं हो सकती. अगर बच्चों ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई किसी भी जगह आग जो है वो नहीं जल सकती.
देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जिससे बच्चों जिस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये कंप्राइज करता है बच्चों 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिसाइड दीज गैसेस बच्चों, एयर में कुछ माइनर क्वांटिटी ऑफ गैसेस है, जैसे एरागन, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नियॉन एक्सेट्रा। एयर की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? एयर क्या है? कलरलेस है, रंगहीन है, दिखाई नहीं देती। एयर सिर्फ महसूस की जा सकती है। एयर जो है बच्चों वो स्पेस घेरती है। एयर exert pressure and air can be compressed and fill into a container. कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी गई है बच्चों for children to show the properties of air. Now what we have to do? We have to perform an activity to prove that air occupies space and weights. So here बच्चों एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एयर का अपना एक मास होता है, एक वेट होता है। एक आप खाली बलून लीजिए और एक आप भरा हुआ बॉल लीजिए। ये एक्टिविटी में आप देख सकते हैं। और जब आप उसको मेजर करेंगे तो जिस बॉल में हवा नहीं होगी वो बॉल हल्की होगी, और जिस बॉल में हवा होगी वो बॉल भारी होगी। इसका मतलब जो एयर है वो जगह घेरती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब बच्चों कैसे ऑक्सीजन नेसेसरी है बर्निंग के लिए, आप ये देख सकते हैं बच्चों। अगर आप 2 कैंडल लेंगे, ठीक है, दोनों कैंडल को आप जला देंगे, लेकिन अगर एक कैंडल के ऊपर आप क्या रख देंगे? एक कैंडल के ऊपर आप ढक्कन बंद कर देंगे, कैंडल को किसी कंटेनर से ढक देंगे, तो वहां आग नहीं जलेगी। इसका मतलब वहां कंबशन नहीं होगा। Take 2 burning candle, cover one of them with glass tumbler. Observe both candles for some time. आप ऑब्जर्व करेंगे the candle with this cover वो बर्न करना स्टॉप कर दी गई है, and the other country continues to burn, and this happened because the candle covered with tumbler is cut off the air supply. Okay, since the other candle gets a continuous supply of air and keep on burning, ये दिखाता है एयर जो है नेसेसरी है कंबशन के लिए। एयर का यूज क्या है? एयर बच्चों इट इज यूज टू रोटेट विंडमिल, विंडमिल को रोटेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एयर इज यूज इन फिलिंग द टायर ट्यूब्स, फुटबॉल एक्सेट्रा। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट रहती है एयर में, इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन इज आल्सो यूज इन मेकिंग मैनी फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे खाद्य का उपयोग करने के लिए बच्चों नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल यूज एयर विच इज डिसॉल्व इन वाटर, एंड द विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन वी हैव एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? पॉल्यूशन adds additional molecule including carbon dioxide and ozone. Without air, the earth will be cold, dry, silent and lifeless. Man is contaminating the air by releasing unwanted poisonous gases from factories, power stations and exhaust of vehicles. This contamination of air with undesirable things, इसे हम pollution कहते हैं बच्चों। जितने लार्ज पार्टिकल्स है पोल्यूशन के इन द लो एटमॉस्फेयर, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। देन वी हैव वाटर। सो लाइक एयर, वाटर बच्चों वो भी इसेंशियल है हमारे लिए। ये हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट पे। Now we can get water from different sources like river, oceans, under the ground, etc. Rain क्या है? Rain बच्चों मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का। हमें पानी चाहिए अनेक प्रकार के काम करने के लिए, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। बच्चों वाटर में इम्प्योरिटीज होती है। So the substance which dissolve in water उसे हम soluble substance कहते हैं, जो पानी में घुल जाता है। जो पानी में बच्चों नहीं घुलता है उसे insoluble substance कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर नेचर, इम्प्योरिटीज बच्चों 2 प्रकार की है, एक घुली हुई इम्प्योरिटीज और एक अघुलन इम्प्योरिटीज। नाउ क्वेश्चन इज फॉर यू, which technique is followed by your mother to separate the leaf from tree? तो सबके घर में बच्चों चाय पत्ती किससे निकालते हैं? छन्नी से छान के निकालते हैं ना। So there are various methods used to remove the insoluble and soluble impurities from water. Now insoluble impurities, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज है बच्चों जो इनसॉल्युबल है, वो हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से निकालते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग अ फिल्टर और फिल्टर पेपर, एंड वी कैन यूज कॉटन एंड ग्रेवल इन अ प्लेस ऑफ फिल्टर पेपर। बाय दिस मेथड वी कैन ओनली रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, बट वी कैन नॉट रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द होम वाटर प्योरिफिकेशन। Then we have sedimentation. इसमें क्या होता है बच्चों? गंदगी जाके नीचे बैठ जाती है। In this process, water is allowed to stand undistributed in a container. This process is performed in 3 stages. Water with insoluble substance is kept in the beaker for some time. The mud settle down at the bottom of the container as sediment, and the clean water can be poured out into a separate container. This is called decantation. Here we have soluble impurities. Soluble impurities, they are more difficult to separate than insoluble impurities, and these are separated through evaporation and distillation. Evaporation क्या होता है बच्चों?
इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है दैट कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, इसको गर्म किया जाता है एंड कुछ टाइम बाद वाटर विल चेंज इनटू स्टीम एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटी विल हेल्प बिहाइंड इन द कंटेनर. Now distillation, ये प्रोसेस है बच्चों. Here you can see steps of the distillation. Impure water is taken in a flask. Impure water को flask में लिया गया है. On heating, water convert हो जाता है steam में and the impurities are left behind. When the steam is cool after passing through the condenser, वो liquid में convert हो जाता है. A pure water called distilled is collected in a flask. Here you can see the distillation process. Here the diagram is given to you. Here are the devices used for the process. Here we have flask, thermometer, rubber stopper, glass tubbing, 125 milliliter Florence flask. Here we have mixture to be distilled. Here we are going to give warm hot place. Then we have water out, condenser, cork stopper, and here we have beaker. और यहाँ हमें साफ पानी प्राप्त हो जाएगा. बच्चों जो पानी हम पीते हैं उनको कैसे हम साफ करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. वाटर कैरी करते हैं बहुत सारे डिसीजेस को, देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड टू बी प्योरिफाइड बिफोर यूजिंग इट. नॉर्मली 3 मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशंस आर यूज्ड इन प्रैक्टिस. वो है बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनाइजेशन. बॉइलिंग क्या होता है बच्चों, द वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग. एट हाई टेम्परेचर जर्म्स जो है बच्चों मर जाते हैं और पानी जो है वो जर्म्स फ्री हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है. डिस्टिलेशन, वाटर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट form of water and ये बच्चों जम फ्री होता है. It is widely used as distilled water intersection, medicine and car batteries. Then we have chlorination. ये एक मेथड है बच्चों जिसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर में to kill the germs, and chlorine tablets are also available in the market which can use for this process. Okay dear Lana, that's all about this class. Revise the chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली EVS क्लास में. Till then, take care, keep on learning and exploring.